हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मेचुका सीरीज। ये देखिए, जिन्हें आप बाइक से जाते हुए देख रहे हैं, ये लोग पॉटर्स हैं जिन्हें इंडियन आर्मी रिक्रूट करती है और उनका एक फिक्स्ड ऑनरेरियम होता है मंथली। एंड वे ज़्यादातर लोकल्स होते हैं उसी एरिया के। और पॉटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वे लोग हिली टेरेन्स या फॉरवर्डेड एरियाज़ में जो आर्मी के एसेंशियल गुड्स और बाकी जो इम्पॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, रिक्वायर्ड आइटम्स, वे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। स्पेशली उस जगह पे जहाँ पे सड़कें ख़त्म हो जाती है और आगे जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है ये आर्मी व्हीकल्स का। तो पॉटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो तुम क्यों मजाक किया हम लोग के साथ तुम्हारा, इसलिए हम ये रिप्लाई दे रहे हैं। एक्साइटमेंट को और बढ़ाने के लिए ताकि It's rare for common Arunachalis to reach the last Indo-Tibetan borders post unless invited by Indian Army during formal occasions like peacetime border meetings with China. Permissions are difficult to get, but we got our passes for 8 people from the district administration one day prior. Now we are moving towards Lamang, the last border post on the undemarcated Indo-Tibet border. It was a rare opportunity that I was getting to visit the last Indian border post without having to worry about paperwork or having to explain to Indian intelligence the purpose of my visit. McMahon Line Indian Tibet border is 29 km north of Mechuka, which separates Indian territory and Chinese territory. Yorlung is the second last Indian post. There is a village close to second post, but civilians are not allowed to go beyond Yorlung. That's the case everywhere in the border areas. Civilians can't gain access beyond certain points under the Indian Army, while the Indian Army makes it impossible to go beyond a certain areas for civilians. On the other side, populating the border areas has been the policy of the Chinese government. Even from a distance, the stark difference in infrastructural facilities can be seen. India and China share a long border of almost 3,500 km, but the fact is that no official boundary has ever been agreed between the two countries. This led to the several territorial disputes. If you look at the map, Aksai Chin controlled by the China but claimed by the India, whereas Arunachal Pradesh controlled by India but claimed by China. This has led to the confusion. Also, disputes over the area led the two countries to go to the war in 1962. On the 20th of October 1962, China's People's Liberation Army walked across the Himalayan border in Ladakh and crossed the McMahon Line in the eastern sector in Nefa, taking India completely by surprise. In the conflict that followed, India lost over 3,000 soldiers in a war that came to be known as the Indo-China War and suffered a humiliating defeat. This 1962 war was an important marker in the making of modern India. दिखाते हैं हनुमान जी का शक्ल। वाह,
क्या दिखाई नहीं दे रहा था। क्लियर नहीं बना। अच्छा। और हनुमान तो ये इसका मंदिर पीछे भी का कैसे बना? इसका पीछे का कहानी ये है, जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए बूटी लेने के लिए हाँ गया था, तब वो पहाड़ को लेकर उड़ रहा था, हाँ, मतलब उड़ रहा था। तब जाके इस पहाड़ में टकरा गया, तो उससे उनका फेस का जो प्रिंट है वो वहाँ पे रह गया। तो मतलब ये लोकली स्टोरी ऐसा कहा जाता है। हाँ। एग्जैक्टली कितना ट्रू है फॉल्स है वी डोंट नो, बट जो वो कहानी मेचुका में पॉपुलर है वही आपको बता रहे हैं अभी। तो इसीलिए ये मंदिर भी जो आप उन्हीं के देख रहे लिए। हैं, उन्हीं के नाम पर हनुमान मंदिर बनाया गया है। और बहुत ही रिसेंट है ना ये मंदिर तो। तो इतना ही है और क्या बोल- स्टोरी इस हनुमान मंदिर के पीछे। So, अभी हम लोग गुरु नानक देव जी के टेम्पल, जो यहाँ पे एक गुफा है, केव है, वहाँ जा रहे हैं। स्टेयर्स से ही चढ़ना पड़ेगा। और तो लेट्स सी, इट्स ऑलरेडी लेट नाउ, इट्स अबाउट टू बी 5 बजने के लिए 10 मिनट ही बचे थे। वी आर जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम द 4th गेट, द मेचुका बॉर्डर। और वहाँ से एग्जैक्टली 7 किलोमीटर के बाद आपको आईबी मिलेगा, इंटरनेशनल बॉर्डर। तो वही था, वही से आए। तो बिफोर दैट वी हैड टू क्रॉस 4 चेक पोस्ट। फर्स्ट आर्मी एंड नेक्स्ट वन ITBP एंड अगेन 3rd आर्मी, सो लास्ट सेकेंड ITBP। तो वैसा करके 4 चेक गेट्स हमने क्रॉस किया और अंत में थोड़ा सा देख के हम लोग को मिल गया। ऐसा चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा। फ्रॉम हेयर वी हैव टू गो तप स्थान श्री गुरु नानक देव जी। तप स्थान श्री गुरु नानक देव जी, तो डायरेक्शन लिखा है। यहाँ से भी बहुत अंधेरा हो गया फिर भी। सो दिस इज़ द प्लेस, द गुरु नानक जी का तप स्थान, जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। तो वी आर जस्ट गोइंग टू एंटर द टेम्पल, द प्लेस। बिफोर एंटरिंग वी हैव टू open our shoes and wash our legs. So this is the culture here. Chalo, let's do this. अभी हम लोग गुरु नानक देव जी के तप स्थान से हम लोग नीचे जा रहे हैं। और नीचे हमें मिलेगा वो नदी जहाँ पे हम पत्थर उठाएंगे। यहाँ थोड़ा सा स्लिपरी भी हो सकता है, तो अगर आप जाते हो तो भी आप संभल के जाइएगा। और बहुत ही अंधेरा हो गया, बस स्टिल हम लोग यहाँ आ ही गए थे, बट देख ही लेते हैं, इसलिए हम लोग नीचे जा रहे हैं अभी। यही वो पत्थर है ना। ये रास्ता तो बहुत नैरो है, ये गुफा से होते हुए जाना पड़ रहा है। बहुत ही अंधेरा भी है और बहुत नैरो भी है। इन तुमको दिखाई दे रहा है, और स्लिपरी भी होने का चांसेस है। तो यही वो रास्ता है जहाँ पे अभी हमें अंदर बताया गया था कि जहाँ से ये पत्थर को वो गुरु नानक जी टच ही करके उन्होंने अपना रास्ता बनाया था उस नदी के लिए। तो ये पूरा एक पत्थर उन्होंने वो रास्ता बनाने के लिए तोड़ दिया था। यही वो रास्ता जो जा बहुत और यहाँ से गुफा से पत्थर जो यहाँ से निकल के यहाँ से एक स्टेयर्स है, यहाँ से जाना पड़ता है, उतरना पड़ता है आप सबको। एक एक करके जाओ ही, पता नहीं क्या बोल। तो ये है वो पत्थर जहाँ पे ये ना, हाँ, वाइट और या ब्लैक जो भी उठाना नहीं, यहाँ से उठाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से हाथ उठाओ, एक बार में एक ही उठाओ रे। 3 पत्थर ये तो 3 से 1 उठाओ ना, आपका वाइट निकलेगा। काला निकले रे, ब्लैक एंड व्हाइट। हो जेमिनाई पर्सन। दो वापस रखो।
3 बार एक बार से उठाते हैं ना, 3 बार का उठाएगा, 3 बार तो कुछ भी आ सकते हैं। सफेद नहीं है, हम तीनों को उठाओ एक बार, देखो। तीनों को उठा के देखो, सफेद है ना काला पत्थर है वो भी देखो, एक सफेद है, एक सफेद पत्थर है। और अभी घुसाओ, अभी तो साइज मालूम मुझे, घुसा के अभी पूरा मिला लो। नेक्स्ट जो करेगा जान के भी नहीं, जो हाथ में मिलेगा वही उठाओ रे, नहीं तो चीटिंग हो जाएगा। मतलब क्या है? फिर भी लेकिन हम जो फर्स्ट पकड़े उसको उठाओ। सफेद पत्थर लाना पड़ेगा। तो पहले एक बार दिल से प्रे कर लेगा। चलो चलो, जी की हाँ, गुरु नानक जी की जय। पूरा होगा। समझ गया, ये गलत पकड़ा। चलो चलो, कौन आप उठाओ, शायद जहाँ में हाथ लगता है तुम उठा लेने से ठीक है ना। चलो तुम हम पहले खत्म कर लेना। हाँ यहाँ करो, चलो नेक्स्ट। गिरेगा रे, संभल के, पूरा नदी है इतना बड़ा। सफेद पत्थर, 2 बार ही है। नहीं पहले का वो ये तो ये तभी जानेगी। क्योंकि ये पूरा पत्थर का साइज एक्चुअली सही हो गया। क्योंकि देखो यहाँ पे 3 है ना, ये सबसे छोटा ना सफेद है, वो तो पता ही चल जाएगा। ये दोनों खाना है तो ये छोटा नहीं रहेगा ना। सीधा नहीं जान कर, सीधा हाथ में छुआ है, ऐसे करना है ना, सीधा हाथ में जो लगेगा उठाना। हम तो ऐसे ही कहते हैं। हम भी पहले ऐसे किसी को खाना है, सेकंड टाइम में सफेद आया। चलो चलते हैं। तो आते वक्त हम लोग दूसरे रास्ते से आए थे, जहाँ ये वाला पत्थर था जो बीच से डिवाइड हो गया था गुरु नानक जी का लिए, उन्होंने अपना मार्ग निकाला था। और अभी जाते वक्त यहाँ से आए। ये थोड़ा इजी है, मतलब इसमें इजीली आप चढ़ सकते हो। अगर आपको फोबिया है डार्कनेस या समथिंग, बहुत क्या बोलते क्या रास्ता होगा, बहुत पतला रास्ता है, तो वहाँ से मत जाइए। संकरी रास्ता बस सपा था। लक्की स्टोन जहाँ अभी हम लोग जाके आए थे। अभी नेक्स्ट यहाँ से राइट जाएंगे तो ये झरना दिखेगा। तो पहले ये पूरा बर्फ़ हुआ करता है ये जगह, मेचुका जगह। फिर यहाँ का जो एक लोकल लोग है कोई, उन्होंने गुरु नानक जी के पास आया वो लोग, और उन्होंने बोला कि यहाँ पे पानी का बहुत ही प्रॉब्लम है और जैसे बर्फ़ है, तो उन्होंने अपना छड़ी घुमाया और पूरा झरना निकल आया। और वो झरना भी ऐसा कॉमन झरना नहीं है, बहुत ही सफ़ेद और साफ़ पानी आता है वहाँ से, और पूरा 12 महीना तक आता है वो। तो यही है इस झरने का कहानी प्लस चेक। और अभी आगे जाते हैं कैसा होगा। तब ये वो झरना, लेकिन एकदम अभी अंधेरा हो गया तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ही अंधेरा हो गया। तो इस झरने का स्टोरी वही है कि बहुत साफ़ और क्रिस्टल क्लियर पानी सफ़ेद दूध की तरह पड़ता है, गिरता है ऊपर से। और पहले ये जगह बर्फ़ हुआ करता था, कभी ये लोग पानी से थोड़ी बीमार या कोई भी ऐसा चीज़ हो तो उससे दूर हो जाए इसलिए।